आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। सर निकात साहब सर हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर सर इंफॉर्मेशन के President Press Club Ladakh Kargil Hussain Khalu sir, resource persons Miqat Hashmi from ABP News, Jamal Afroz from Aaj Tak, Iftikhar Hussain from Planet Ladakh, my dear colleagues and other media persons, a very pleasant afternoon and Assalamu alaikum to you all. जैसे कि हम सब लोगों का इल्म है, आज हमारे 2 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का आखिरी दिन है, तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त न हमारे गेस्ट इंजीनियर बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मुंशी यूसुफ, हेड असिस्टेंट DIPR कारगिल से, कि आप हमारे जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इम्तियाज काचू सर को ट्रेडिशनल शॉल से वेलकम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे ऑनरेबल EC सर से कि आप प्लीज हमारे रिसोर्स पर्सन मिकात हाशमी सर को ट्रेडिशनल शॉल से वेलकम करें। इसके बाद हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन जमाल अफरोज खान सर को भी ट्रेडिशनल शॉल से वेलकम करें। शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ हमारे जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सर से कि आप प्लीज हमारे अगले जो हमारे रिसोर्स पर्सन है सन ऑफ सॉइल इफ्तिखार हुसैन सर को ट्रेडिशनल शॉल से वेलकम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब लद्दाख हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Executive Councillor for Information, LHDC Kargil, Engineer Puncho, Tashi sir, the very young, energetic Joint Director Information, Union Territory of Ladakh, Imtiaz Kachu sir, our esteemed guest speakers, Miqat Hashmi ji, Strategic Partnership Manager and Associate, Executive Editor with ABP News, and Mr. Jamal Afroz Khan, Senior Cameraman with Aaj Tak and currently with National Famous Event Raika. Other esteemed guests, staff members from DIPR Kargil, my colleagues from Press Club of Ladakh Kargil, and other dignitaries. As per our custom, Assalamu alaikum, Jure, Namaste to all of you. First of all, on behalf of Press Club of Ladakh Kargil, it gives me a pleasure to welcome you all to this significant workshop. I would like to express my gratitude to Shri Imtiaz Kachu ji and his dedicated team, especially Anwar Sarpa, for organizing this platform, which is an incredible opportunity for the local media fraternity to enhance their skills and knowledge. Over the year, the DIPR Kargil has supported the local journalists by organizing various events such as National Press Day, exposure tours for our local journalists, and other initiatives being highly beneficial. Some of the milestones achieved include media accreditation for senior journalists, impanelment for local newspaper and government advertisement, the introduction of multimedia collaboration. These initiatives not only empower the local media, but also some struggle and challenges of local media in Kargil. However, despite these opportunities, the media fraternity in Kargil continues to face several challenges, like harsh winter and remote coverage. Covering stories in far-flung area of Kargil during the harsh winter is a significant challenge. Giving government jobs to work as freelance in private agencies. Limited support for media during events like during national programs, festivals or UT level programs,
There is often no dedicated space or consultation with media professionals to ensure their needs are addressed. And about script writing and editing alone, due to manpower and revenue constraints. Revenue challenge, local media house face financial challenges with low payment from agencies, limited support from government and private sectors. These issues highlight the urgent need of structural and financial support to help media professionals fulfill their responsibilities effectively. About our press club, sir, I want to give a brief note on our press club. Our press club of Ladakh was officially inaugurated in 2018 before the abrogation. Initially, we allotted a government building near DIPR office by then Deputy Commissioner Shri Basirul Haq Chaudhary, sir. But due to space constraint and premises, they are not fully operational. Thanks to the effort of Honorable President, Chairman, Chief Executive Councillor, Honorable Executive Councillor, HDC Engineer Pusokaji sir, the very dynamic Pusokaji sir has been always so gracious and so dynamic, plus being so supportive for the information department and any initiative that the department takes. खुशामदीद कहूँगा हमारा अफरोज साहब का वेलकम करता हूँ दोनों आपको और निकता के साथ खुशामदीद क्योंकि किस ज्वाइन के आए और इस खंड में बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे खास दोस्त तीसरे रिसोर्स पर्सन जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे और मैं बताऊँ सर आपको DIPR लद्दाख के साथ इम्पैरेंट है कैटेगरी 1 के अच्छे फिल्म मेकर हैं जवाब हुसैन साहब अच्छे अच्छे फिल्में आते हैं फाउंडेशन लेके इस साल के एडिशन पे भी यही फिल्म इन्हीं की बनाई हुई है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का प्रोड्यूस किया एक फिल्म अचीवमेंट्स पे हम फाउंडेशन डे के दिन दिखा चुके हैं पिछले कई सालों में भी कर चुके हैं ये और आज यहाँ पर तशरीफ फरमा हुसैन खालू साहब हमारे दोस्त प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख करगिल उनके बाकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी वगैरह और जितने भी ऑफिस बेयरर्स प्रेस क्लब के बैठे हुए हम सबको शामिल कहता हूँ बाकी यहाँ बैठे हुए हमारे खास दोस्त और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अज़ारी आलवी साहब जो मीटिंग के लिए ले जाना पड़ा अचानक उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है उनके बाकी कोलीग्स अनवर सफा साहब डॉक्टर अनवर सफा जो असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं हमारे बड़े होनहार हैं यूसुफ साहब और बाकी ऑफिशियल्स आप सबको खुशामदीद और शुक्रिया ये कि ये एक बहुत बढ़िया एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया इसी वेन्यू पे पता नहीं कुछ है जादू साहब से पिछले साल भी जनवरी में ही एक इवेंट हुआ था जनवरी दिसंबर में ही लेकिन बहुत बढ़िया रहा है मैं अनफॉर्चुनेटली मैं खुद कल बदकिस्मती से इनॉग्रल इवेंट और दिन भर के सेशंस में बैठ नहीं पाया मैं उस जमाल अफरोज साहब और हाशमी साहब को सुनना चाहता था उनके साथ बड़ी इंटरेक्शन होती और कुछ सीखने को मिलता बहुत ज़रूरी है मीडिया वाले सर्कल में मीडिया फ्रेटर्निटी में बहुत कुछ अब डेवलप हो रहा है नए चीज़ें आ रही हैं नए एस्पेक्ट्स आ रहे हैं वो सब सीखना ज़रूरी है हम लोगों के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में हैं मगर ये नुआंसेस जो है मीडिया रिलेटेड और फिल्म मेकिंग रिलेटेड और क्या जिसे कहते हैं वो सब सीखना उनके बारे में थोड़ा समझना और बड़ा पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करना कंट्रीब्यूट करना ये हमारा फ़र्ज बनता है इसीलिए ऐसे इवेंट्स हम चाहते हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लद्दाख की हर 3-4 महीनों में होता है साल में 3-4 भी हो एक्सपोजर हो ओरिएंटेशन हो स्किल अपग्रेडेशन हो कुछ चीज़ें स्किल इन्हांसमेंट हो और हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और ख़ास कर हम कोशिश ये करते हैं पूरे लद्दाख में मीडिया पर्सनस जितने भी हैं हर एजेंसी के जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लद्दाख में लेकर के उनको कुछ न किसी तौर पे कोई एक्सपोजर मिलता रहे हम कोशिश ये भी करते रहे हैं कि हमारे मीडिया पर्सनस को बाहर भी भेजे जाए बाहर लद्दाख से बाहर जाके इवेंट्स कवर करें और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स मीडिया रिलेटेड जितने भी हैं उनमें बड़ी बहुत ट्रेनिंग हासिल करके आए और यहाँ पे हमारे जो होनहार नए बडिंग मीडिया पर्सनस हैं उनको भी थोड़ी रोशनी दिखाएं या रास्ता दिखाएं बेशक हुसैन खालू साहब के स्पीच में आपने सुना कि हमें कितने दुश्वारियों के साथ का सामना करना पड़ता है जो
लद्दाख से बाहर जो प्रेस वाले हैं उनके साथ उनको जो मुश्किलात फेस करने पड़ते हैं वो तो बहुत पीछे वो कुछ नहीं है। इनको यहाँ इस हार्श सर्दी में मुश्किलात जो फैलाते हैं बैटरीज का लॉजिस्टिक्स का ट्रांसपोर्टेशन और जाके वापस शाम को आके जल्दी स्टोरेज फाइल करना, ये क़यामत से भी कोई कम नहीं है, मगर बहुत ऊंचे पैमाने की मुश्किलात फेस करते हैं। इसके बावजूद भी आखिर में जैसे कहते शाहरुख खान ने फिल्म में कहा कि आखिर में सब ठीक हो जाता है, लेकिन कितनी साजिशें होती हैं, मौसम की साजिशें वगैरह वगैरह सारा कुछ प्रोबेबिलिटी पर वो सिर्फ उसका हाल सिर्फ यही जाता है तो आखिर में स्टोरी फाइल हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारे जो मीडिया पर्सन हैं लेकर के दोनों में इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं पर्सनल कहें फैमिली लेवल पे कहें और करियर के बारे में के हवाले से कहें तो बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है और इसके लिए तालियां तो बनती हैं, स्टैंडिंग ओवेशन भी बनता है। लेकिन एक आपके सामने लिखे जाती है सारे हिसाब से आप देखें डिग्री कॉलेज कारगिल के प्रोडक्ट है। डिग्री कॉलेज कारगिल में कोई मास कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं है, ईजेएम कॉलेज ले में मास कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं, पता नहीं इनको कहाँ से सीख मिली, किसी ने इंस्पायर किया होगा, किसने किया था साथ साथ। सबसे पहले कौन से मीडिया पर्सन उस वक्त हुसैन नागिन खालू साहब जो थे तो वहाँ पे और हुसैन खालू साहब से अगर हम पूछने के बैठ जाएं कि उनको किसने इंस्पायर किया तो कहानी लंबी हो जाएगी, लेकिन पता है उन्होंने भी कहीं ना कहीं से वो भी दिल्ली में पढ़ते थे, जामिया में ही थे, लेकिन अलग ही कहानी है, उसके लिए पूरा एक दिन चाहिए। लेकिन जैसे हुसैन साहब काबिल तारीफ में सैल्यूट एंड हैट्स ऑफ यू। तो खैर ऐसे ही मीडिया का जो सिलसिला शुरू हुआ है और माशाल्लाह बहुत आगे चल रहा है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव लेवल पे और डेवलप हो रहा है। हम हुसैन साहब, इसाक साहब और बाकी जितने भी होनहार जो मीडिया पर्सन जितने यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मैं पूछना ही चाहता हूँ किस मुँह से बाकी लोगों को बोलेंगे यहाँ जवान लोगों को कि आप मीडिया लाइन में आए, क्योंकि बहुत मुश्किलात हैं। रेवेन्यू या इनकम रेवेन्यूरेशन की बात अगर करें उस हवाले से तो ये कहेंगे नहीं, बिल्कुल मालाना डिस्करेज करेंगे, क्योंकि इनको खुद उस मुश्किल चैलेंज को फेस कर चुके हैं, उस मुश्किल रास्ते पे चल चुके हैं। इम्तियाज़ काशो साहब हमारे बीच, हमारे गेस्ट मेहमान और तीनों रिसोर्स पर्सन्स, आपका नाम मुझे थोड़ा सा हो जाए, हमको वेलकम करते हैं करगिल सर, हमारे असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डॉक्टर अनवर साहब, प्रेस क्लब कारगिल के प्रेसिडेंट हुसैन खालू साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, बाकी यहाँ पे जितने हमारे प्रेस के फ्रेंड्स आप यहाँ पे मौजूद है, सबको मेरे तरफ से जुड़े हुए सलाम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है आई एम रियली फील वेरी एक्साइटेड, क्योंकि काफ़ी सालों से आप लोगों के साथ जो है दोस्ताना रहा है। हुसैन खालू ने जब शुरू किया था ये मीडिया, जिस तरह अभी इसाक साहब ने बताया कि जब केबल चलते थे, हम भी यही भी था 2007-8 की बात है, हम भी अपने घरों में केबल लगाने के पीछे लगे रहते थे कि किस तरह हम वो करेंगे। तब एक करगिल नंबर आता था हफ्ते में या फोर्टनाइटली आता था, वो आते आते जो मैं इतना तरसता था कि वो उस न्यूज़ पेपर कब हमारे टेबल पे पहुँचे। 3 रेडियो रखते थे हम लोग ऑफिस में, घर में, गाड़ी में, कि करगिल का वो न्यूज़ सुने ताकि वो 10-15 मिनट के न्यूज़ आते हैं वो छूट ना जाए, क्योंकि हमारे लिए न्यूज़ और मीडिया इतना इम्पोर्टेंट है जो हमारा लाइफ का एक पार्ट है। खासकर एक पॉलिटिशियन को, एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक गवर्नेंस को आप लोगों के बगैर जो है कुछ नहीं चल सकते हैं, चाहे वो दुख में हो चाहे वो सुख में हो। कल एक दुखद बातें हो जिसकी वजह से हम इनॉग्रेशन सेशन में नहीं पहुंच पाया, और आज आप लोगों के सामने हम एक कंडोलेंस पेश करते हैं हमारे फिरोज अहमद खान साहब, उसके पूरे खानदान को, क्योंकि हाजी गुलाम हसन खान साहब को करगिल के टॉलेस्ट वन अबाउट द टॉलेस्ट लीडर ऑफ दिस कम्युनिटी ऑफ दिस रीजन बता के 2 टाइम MP बने, 2 टाइम हमारे काउंसिल में हमारे साथ काम किया उन्होंने, तो एक मैन ऑफ प्रिंसिपल था, एक लेजेंड था करगिल के लिए जो हम लोगों ने खोया। तो आज की इस मौके पे जो हम उनको कंडोलेंस पेश करते हैं उनके जितने भी नियर डियर से, तो इसकी वजह से हम कल नहीं पहुंच पाए। और जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने सुना है कि हम भी जो है हमारे रिसोर्स पर्सन को सुनना चाहते थे, ये 2 वे कम्युनिकेशन होते हैं। जब भी किसी भी जो है एग्जीबिशन, एक्सपोजर्स या इस किस्म के वर्कशॉप में हमें जाने का मौका मिलता है, हम भी जो है बहुत कुछ आप लोगों से सीखते हैं सर। और आप लोगों को मुझे लगता है कि हमारे जितने यंग वेटरन जर्नलिस्ट हैं सर, अब करगिल को जो है करगिल का एम्बेसडर बनते जाएंगे। इन लोगों से आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस सुना होगा, इनका मुश्किलात तो हमारे हुसैन साहब ने भी बताया, कल भी आप लोगों को बताए होंगे। हम हमेशा यही फील करते हैं कि इनका सर्वाइवल क्या होगा,
जिस तरह अभी इम्तियाज साहब ने बताया कि अगर ये किसी और फ्यूचर जनरेशन को अगर इस प्रोफेशन में आने के लिए बताए तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये प्रोफेशन आपको कहाँ तक आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा, जिसके लिए हम सबको इसमें एक चिंता रहता है, चिंता रहा है और आगे भी जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोशिश कि हम किस तरीके से आप उनकी मदद कर पाए। तो ये तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी है, काउंसिल को भी है और जितने भी डिपार्टमेंट के साथ मसले को सबको जो है खासकर आप लोग जैसे प्राइवेट जो मीडिया में लोग हैं उनके चिंता जरूर रहता है। तो मुझे खुशी है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पिछले कुछ सालों से जो ना आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आप लोगों को जो ना नए इस दौर में अपडेशन के लिए बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं। लास्ट ईयर में मुझे ऐसी किस्म के वर्कशॉप में आने का मौका मिला जो हमने छुट्टी में किया था। उस वक्त के रिसोर्स पर्सन आए थे, काफ़ी मतलब हमारे रिनॉन रिसोर्स पर्सन वहाँ पे लाए थे। इस तरीके से आप लोगों ने किया सर, तो ये बहुत अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट जो है ना हमेशा आप लोगों के लिए आपको अपडेट करने के लिए आपके फ्यूचर जो उसको करने के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह शायद कुछ चीज़ों में आप लोगों को इसका मदद रहेगा। हुसैन खालो साहब ने जब शुरू किया था मीडिया को, तब तो जो ना मीडिया में इतने लोग भी नहीं थे, कुछ लोग भी थे, चंद लोग थे, लेकिन फिर भी जरूर सोचा कि उन्होंने जो ना हमेशा लड़की के ओवरऑल डेवलपमेंट में जो ना इनका बहुत एक बड़ा एक रोल रहता है। हम भी हमेशा ये तरस रहते हैं कि वो कि कब जो ना हमारे क्रिटिक हमें क्या बोले, कब हमारे काम के बारे में लोग हमारे सलाह कब करें, कब हमें अप्रिशिएट करें, उन चीज़ों का हमेशा वो रहता है। तो उसमें जो ना सबसे बड़ा रोल रहता है मीडिया का। कई चीज़ों में इतना एग्जेजरेट करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर मीडिया इन प्रिंसिपल नहीं चले, मीडिया अपने रोल और रिस्पॉन्सिबल को नहीं समझे, तो मीडिया से खतरनाक चीज कुछ नहीं हो सकते, है कि नहीं? आप सब लोग जानते हैं कि एक काम आया था, उन्होंने बोला था कि मल्टी करोड़ स्कैम्स, तो इस तरीके से बहुत खतरनाक चीज होता है। इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। और लेटेस्ट लास्ट वाला जब एसआर साहब ने हमारे एडवाइजर के साथ जो 1-to-1 वो किया, तो रियली अप्रिशिएबल है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई कुर्सी पे होता है, कोई बड़े उस पर होता है, तो हम ये झिझकते हैं, डरते हैं। हकीकत को पेश करने में किसी को किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं, हकीकत को सामने लाना है। आखिर अल्टीमेटली जो भी जिस कुर्सी पे बैठा है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, वो पब्लिक को अकाउंटेबल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो जितने काउंसिल्स में हो, असेंबली में हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, एवरीबॉडी इज अकाउंटेबल टू दैट लोकल मतलब पब्लिक। तो पब्लिक को अकाउंटेबल होने के लिए जो है जब तक वो पब्लिक फॉर्म में नहीं लाएगा, तब तक जो है बंदे को ये लगता है कि मैं ही ठीक कर रहा हूँ। तो इस चीज़ों को आगे करने के लिए जो है मीडिया की इतना ज़रूरत है हमें, और जो भी आपके वेलफेयर के लिए करने की ज़रूरत है, वो काउंसिल, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई जो है ना आपकी उसको रिजॉल्व करने की हर कोई कोशिश करेंगे। काफ़ी सालों के बाद आप लोगों को छोटा सा ग्रांट मिला है, जो हुसैन साहब ने आज भी बताया, उस दिन भी बताया। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको रिफ्लेक्ट किया है अपने प्लान में, क्योंकि प्लान जो है साल में एक ही बार बनता है, बार बार तो बनता ही नहीं। तो अगला साल 2025 के स्टार्टिंग में मार्च के बाद जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट सेक्टर, एसडीपी, हमारे काउंसिल वगैरह हर कोई नए प्लान करने को शुरू करेंगे। तो वहाँ से आया तो ठीक है, नहीं आया तो उस दिन भी हमारे सीसी साहब ने आप लोगों को एश्योर किया है कि हम काउंसिल के प्लान में आपको उस बिल्डिंग का जो भी आप लोगों का एक वो विजन और प्रोजेक्ट है उसको वहाँ पे लेके जो है वो फैसिलिटेट आपको करने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहले भी जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से यहाँ पे जो ऑडिटोरियम हॉल के आसपास में जो कुछ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें भी मीडिया उसको अकोमोडेट करने की कोशिश पहले भी किया था। तो मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में आप लोगों का भी इनपुट्स रहेंगे, आप लोगों का भी कुछ सोच होगा, कुछ विचार होंगे, कुछ एस्पिरेशंस होंगे, वो बराबर डिपार्टमेंट को पहुंचाता रहे, हमारे साथ भी वो पहुंचाता रहे। क्योंकि हमेशा हम तो जो ना आप लोगों के साथ एक फ्रेंडली उसमें जो हम लोग डिस्कस करते हैं, हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड में हम डिस्कस करते हैं, ऑन रिकॉर्ड में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें कोई किसी चीज़ की वो नहीं है कि हम हमेशा आप लोगों की भलाई के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट की भलाई के लिए हर कोई काम करता आया है। इतने सालों का एक सफ़र है, 17 years आई बीन इन कारगिल। तो ये काम करने का मौका मिला, अपने छोटी सी एक्सपीरियंस, छोटी सी उसकी उसमें जो है हमने काफ़ी कोशिश किया करगिल में। जिस तरह के अभी के आपका TFC है, वो एक एग्जाम्पल है, वहाँ पे ट्रक वो हुआ करता था, ट्रक क्या कहते बनाने का हुआ करता था। आपका जो यहाँ पे अभी टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड से जो हमने दरिया को काट के जो है वहाँ से ज़मीन निकाल के बनाया था, उसमें हमारा एक पर्सनल कंट्रीब्यूशन है। बीइंग एन इंजीनियर जो है ना हमने काफ़ी चीज़ों में किया था। ये दरिया की शुरू 2010 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्ट्रक्शन था कि दरिया के किनारे पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बने।
तो हमारे यहाँ करगिल में टैक्सी स्टैंड बस स्टैंड बनाने के लिए जगह बिल्कुल नहीं था, जो बाजार के इर्द गिर्द में जो है हमें मिले। लेकिन इस जगह को कर हम ये बताएंगे कि नेशनल हाईवे फ्लड की वजह से खतरे में है। तो आईफाल ब्रिज से लेकर इस्लामिक स्कूल के चौक तक हमें जो आरसीसी बंड लगाने की जरूरत है। हम बंड में कन्वर्ट करके वो लगाएंगे ताकि जो जमीन रिक्लेम हो जाएगा उसमें हम टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड बनाएंगे। कभी कभी छोटा सा चीज जो है सर काम करता है। तो यहाँ पर इट्स एक्चुअली अबाउट बिल्डिंग अ कम्युनिटी एंड इन्फॉर्मिंग द कम्युनिटी। रीजन ये है कि जब आप मेजर न्यूज पब्लिशर्स पब्लिशिंग हाउसेस को देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि ये लोग किसी और ही रेस में हैं। हो सकता है कि आप उसको सेंसेशनलिज्म का नाम दे सकते हैं, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं इनका एजेंडा बहुत साफ है कि हमें यहाँ पर लोगों को इन्फॉर्म करना है और एक कम्युनिटी बिल्ड करना है। सो जब ये हमारा फंडा जो है, जो बेसिक है, जो जर्नलिज्म का बेसिक फंडा है, व्हेन इट विल बी ऑन द टेबल एंड इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये सब तो पोर्शन है, लेकिन सस्टेनेबल भी होना बहुत जरूरी है। भाई लोगों के घर चल रहे हैं, माशी मतलब जो भी जरूरियात है उनको पूरा करना है, तो उसमें ये सोर्स ढूंढना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कल इफ्तिखार भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि हाउ ही स्टार्टेड इट, हाउ ड्यूरिंग पैंडेमिक ही वाज हियर, ऑल ऑफ अ सडन ही हैड क्लिक्ड अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, किसी ने उसको देखा, बाद रिप्लाई किया। सो opportunities come from any, let's just go forward. Why I think sustainable digital journalism is required in Kargil and why it matters is basically, अब मुझे जब हम यार इसमें खरोच ना आ जाए, यार यहाँ पर बर्फ गिर रही है, मैं नहीं जा सकता, अभी बारिश हो रही है, कुछ इस तरीके का है, अगर वाटर प्रूफ नहीं है, बहुत सारी चीजें in here as well. So I'm just gonna scratch the surface, but maybe this will give you an idea, या फिर हो सकता है कि already कुछ लोग कर भी रहे हैं। So advertising revenue, that's one portion of it. Second is audience membership. Third is branded content, and fourth is grants. So let's just discuss in details as well. So advertising revenue. यहाँ पर मैं डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं कंट्रोल्ड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ। यानी जब हम अपना गूगल एड स्पेस देखते हैं, जो लोग वेबसाइट कंट्रोल कर रहे हैं और बैकएंड को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि उनको गूगल एड मैनेजर का भी एक्सेस मिला होगा। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप बिल्ड करते हैं और वहाँ पे वेबसाइट में आपका ऑटोमेटिकली ऐड आता है, which is called inventory. आप गूगल एड मैनेजर को थोड़ा सा बता सकते हैं कि 20% की इन्वेंटरी मैं सेव करके रखा हूँ, something that is extremely local. Let's just say for example, मतलब कोई कॉपलर है, ठीक है, I'm not saying कि the community. And if he is interested in going in that direction, you can pitch them an idea. Sure, ये नहीं सोचना कि मुझे मुनाफा कमा लेना है। अगर आप लोग ऐसा सोचने लगेंगे तो फिर एक्चुअली चलेगा नहीं। आप बोलेंगे it will be a even split or whatever split that you agree for. जब मैं split की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई बड़ा बिजनेस है, क्योंकि कॉबलर मैंने बोला तो हो सकता है इसमें स्प्लिट की जरूरत पड़े। लेकिन अगर कोई बड़ा बिजनेस है, maybe it's a big clothes showroom, it's a big sporting adventure company which is based out of here. Then you can pitch them more direct deals. Like we will create banners for you. We will host it on our website, and based on this is our structure. You can तो जो भी inventory आपकी तो कोशिश करें उस inventory को control करने और promote local business there as well. It's just like how website को उसी तरीके से सोचना है। Google को आप जितना पावर देते जाएंगे वो क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी यूज करके वो दूसरे स्पॉन्सर्स को करेगा। हो सकता है कुछ ऐसे स्पॉन्सर जो यहाँ रेलेवेंट भी ना हो, या हो सकता है थोड़ा मायूस। क्योंकि आज की डिजिटल एरा में हमें डिजिटल जर्नलिज्म के बारे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो एडवर्टाइजिंग एंड मोनेटाइजेशन पार्ट था जो वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा। सो अब हम अपने दूसरे रिसोर्स पर्सन को बुलाना चाहेंगी। जमाल अफरोज खान, सिनेमेटोग्राफर, फिल्म मेकर, आज तक के हैं, तो प्लीज़ आप अपना सेशन शुरू कीजिए। जमाल अफरोज खान सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन का, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ काम की चीज़ हूँ थोड़ा बहुत, जब तक मुझे लगता था कि मैं एकदम बेकार आदमी हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आऊँ, मैंने कुछ मश्क दी थी कल, कितने लोगों ने की है एक्सरसाइज, या उनको लगा कि यार फालतू को क्या देती है ये। कुछ उम्मीद है कि कुछ लोगों ने कुछ किया है। हाँ, अच्छा,
और हैं 3-4 लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ही हैं। चलिए ठीक है। तो आपका डेटा हम कैसे देख पाएंगे इस पर? बट उसमें आप थोड़ा सोच लीजिएगा, जो आपका शेर है, जो आपकी पोइट्री है, अगर आपको उस पे एक पिक्चर शूट करनी है या एक वीडियो बनाना है, वो वीडियो क्या होगा, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। जस्ट उसको रिकॉल कीजिए और उसको विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। जस्ट मेक ए स्केच, जैसे मैंने कहा था ना, अपने कागज पे स्केच बना लीजिए कैसे। बट यू हैव, अब आपने नहीं किया है पिक्चर क्योंकि मे बी आपको शायद वक्त ना मिला हो, तो आप उसको वर्बली एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आपका परवाज़ तखय्युल कितना है, आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट के कुछ जो नौकरी साहब ने चीज़ें बताई, उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों का यूट्यूब का चैनल है और मोनेटाइजेशन भी है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। R&D करना पड़ेगा। जो सिनेरियो में आप शूट कर रहे हैं, वो सिनेरियो में सैलून से पहले आप शूट कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ है। तो एक दिन आप डेडिकेट कीजिए कि मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि मेरे पास कोई रेडी फॉर्मूला नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो हर एक मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, सेंसर अलग होता है, लेंस अलग होता है, नहीं है तो आप उस आवर में शूट कीजिए और अपना ISO चेक कीजिए, किस ISO तक आपके पिक्चर में या वीडियो में ग्रेन नहीं आता है, तो उस हद तक उसको यूज कीजिए। प्लस आप, मैंने जो कहा कि आपने ऑटो में शूट किया, मैनुअल में नहीं किया होगा, वो बहुत इजी है। मैं मतलब ऑटो बनाए, आजकल तो बहुत एडवांस ऑटो हो गया, मतलब सब कुछ टेक केयर कर लेता है वो, बट ट्रिकी सिचुएशन में नहीं कर पाता है, ठीक है। एक जगह अगर ब्लू है और एक जगह रेड है, तो दोनों का इधर से आप प्लान नहीं करेंगे, इधर वाइट बैलेंस रेड का रहेगा, इधर ब्लू का हो जाएगा, सेम फ्रेम में आपको 2 कलर मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फोन को एक्सप्लोर कीजिए। दूसरा, वैसे मौके पर आपको प्रैक्टिस करनी कि कितने शटर स्पीड तक आपका कैमरा एक डिसेंट पिक्चर दे सकता है। दूसरा, ISO कितने हद तक बर्दाश्त कर सकता है कि भाई इतने हद तक मैं ले सकता हूँ। तीसरा, अगर आप सपोज 4-5 कैमरा पर्सन्स हैं, तो एक बैटरी ऑपरेटेड हैंड हेल्ड लाइट ले लीजिए, या क्योंकि ये आपका एनुअल फंक्शन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एनुअल इवेंट है, तो एनुअल इवेंट में हम सब लोग कैमरामैन हैं, ठीक है। हम 30, 40, 50 जितने भी कैमरामैन हैं, और वो सब लोग उसको कवर करते हैं, जैसे अभी आपने बताया। तो क्या हम कंट्रीब्यूट करके कुछ वॉलंटियर्स या कुछ पेड लोग, जिनको हम थोड़ी बड़ी हैलोजन लाइट बैटरी ऑपरेटेड, या जिस एरिया से वो गुजरता है उस एरिया में जो दुकानदार हैं, कोई घर है, तो बड़ी हैलोजन लाइट्स का इंतजाम उस एरिया में करते हैं, ताकि हमको विजन, ये एक दूसरा तरीका है जो आपकी, क्योंकि ये आपका एक एरिया है जहाँ से गुजर के जाता है, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसको हम वेल लिंक कर सकते हैं आपस में कंट्रीब्यूशन करके ही, या अगर जो ताउन करना चाहते हैं उनसे पहले से बात कर लें कि भाई यहाँ एक बड़ा हैलोजन लगा दीजिए। तो दूसरा सोल्यूशन मतलब अनटेक्निकल, बट ये आपकी सोशल स्किल पर डिपेंड करता है कि आप वो पूरा ही एरिया चरागाह हो जाए, रोशनी उतनी भर की मिल जाएगी जितना आपको रोशनी शुरू होता है। तो फिलहाल तो मैं ये दे सकता हूँ, बाकी इंशाल्लाह मैं R&D करके आपको बता सकता हूँ। मेरी नॉलेज थोड़ी सी कम है, इसलिए मुझे थोड़ा और भी पढ़ना है। कहा तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे लिखता, तो मैं हूँ माल न्यूज़ लिखता हूँ, शायद तो कभी किया नहीं। तो फिर अब सुबह जब आँख खुला नमाज पढ़ने के बाद, मुझे याद आया आज तो हमें एक टास्क दिया है, अब क्या करना है इसको। तो मेरे मिसेस वहाँ पे रोटी बना रहे थे चूल्हे पे, हमारे यहाँ चूल्हा जलता है घर के अंदर ही, ठंड के लिए जी, ठंड से बचने के लिए, तो उसे हम ठप कहते हैं सर। अच्छा। तो मैंने सोचा, मुझे फिर ख्यालों में यही आया कि मैं इसी पे थोड़ा सा लिख लूँ अपने जबान में। इसमें मैंने इसका मौजू रखा है सर थप। हाँ, तो इसको इस तरह लिखा है सर, हाँ, रुगुन यूं ग्राम यूं थप यानु मैं यूं। जो ही हमारे यहाँ सर्दी होता है ना सर, थप को हमारे किचन में इंस्टॉल करते हैं।
फिर जो सर्दी आता है तो तब में चूल्हा जलाना भी शुरू हो जाता है, आग जलाना शुरू हो जाता है। क्यों क्यों खून क्यों थाली का मैं क्यों, तो सब क्या करते हैं हाथ आप सेकने के लिए मुझे समझाइए, बाकी लोग समझ बाद में ट्रांसलेट होगा। गुनियोस ग्रानियोस थालियानो मेयोस शुरू से तो क्यों क्यों खून क्यों थाली का मैं क्यों तो कोल टाकीजा फतीला चेपिया थाबियानो शिंगतों न्याम्बो शिलांगतों। क्या बात है। मुझे बताइए। अब इसलिए ये सर की सर्दी आ गया, साथ में ठंड भी बढ़ गया, तो तब में जो मतलब चूल्हा है ना सर, चूल्हे में आग भी शुरू हो गया, जलाना शुरू हो गया। तो कहते हैं कि बच्चों को लाओ हाँ चूल्हे पे इस पे सेकने के लिए हाँ, इस पे फिर आप तवा भी लगाओ, क्योंकि मेरे मिसेस रोटी बना रही थी ना, तो उसमें फिर फतीला होता है हमारा चाय बनाने के लिए डेडिकेटेड। तो फतीला तवा लगाओ चाय रोटी के लिए, फतीला चढ़ाओ चाय के लिए। फिर इसमें आग जलाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, शिलांग यूज करते हैं, शिंग यूज करते हैं। शिंग मीन्स वुड सर, शिलांग मीन्स कावड़ा। हाँ तो ये इसमें आया था। वेरी नाइस क्लैपिंग। तो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस आपका सबका वेलकम है एक बार फिर आज के इस स्किल डेवलपमेंट के वर्कशॉप में। तो कल के प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हुए कल कुछ फोटोग्राफ्स थे वो यहाँ पे शो नहीं हो पाए थे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो सबसे पहले आज हम वो फोटोज देखेंगे, उसके पीछे की कुछ टेक्निकलिटीज या कुछ स्टोरीज हम सुनेंगे। फिर ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं एक शॉर्ट फिल्म एडवेंचर बेस्ड एक क्लाइमेट इम्पैक्ट का एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, वो इसलिए कि थोड़ा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा हमारे जो जर्नलिस्ट जो भाई है। तो लास्ट में हम वो थोड़ा स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये फोटोज तो आपने कल दिखाई थी, ये एक कांची में शूट किया हुआ एक शॉट है एक्सप्रेशन के दौरान एक विलेजर। तो ये आए हैं इनको कांची में एक विलेज है जो हम कहते हैं ब्रॉक, जो समर में हम वहाँ स्टे करते हैं अपने पेट पकड़ी के साथ। तो वहाँ पे लाइटिंग का कोई सुविधा नहीं होता है, तो लाइट वाइट कुछ ऐसा कुछ पता नहीं, तो वो मोमबत्ती ये सब जला के वो गुजारा करते हैं। प्रॉपर घर नहीं है, वो एक ब्रॉक है, वो समझ रहे हैं। तो GHE एक सोशल एंटरप्राइज टेलीविजन से GHE एक आयशर और रॉयल एनफील्ड, तो उन्होंने एक टीम अप करके यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो एक फोटो है एक ओल्ड मैन, वो आए हैं जो बच्चे हैं, इसको इलेक्ट्रिफिकेशन हम फिल्म में दिखाएंगे। आगे रेजिडेंट से 11-12 के कुछ बच्चे आएंगे स्कूल के IS स्टडी करके, तो एक स्कूल के PDW ट्रिप पे आते हैं हर साल, तो क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ वो एक काम करके जाते हैं, तो वो डोनेट करते हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट्स गाँव जाके तो वो आके इलेक्ट्रिफिकेशन करते जाते हैं। तो ये जो और जो अंकल है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में हम फोटोग्राफी रूल आना चाहिए, ताकि हमें पता है कि कहाँ पे क्या ब्रेक करना है। रूल आर मेंट टू बी ब्रोकन, लेकिन हमें पता होना चाहिए रूल क्या है। उसी गांव में जब ये सामान जो बैटरी जो सोलर पैनल जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कुछ लोग गधे पे लेके जाते हैं और इन आंटी के पास गधे नहीं है तो वो खुद लेके जा रहे हैं। तो एक बैटरी शायद 30-40 किलो के होते हैं, लेकिन इजीली वो लेके जा पा रहे थे। पहाड़ में 4 किलोमीटर लेके जाना है उनको। ये इस ईयर की एक एक्सपीडिशन है, सेम एक्सपीडिशन लेकिन डिफरेंट पीपल और Thank you so much, sir. अब मैं जॉइंट डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद में एक बार फिर EC सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इफ्तिखार हुसैन सर को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और मोमेंट ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much. Sheikh Hashim Rizvi, Vice of Ladakh से Sheikh Hashim Rizvi।
इनके बाद इब्राहिम फिरदौस तैयार रहिए। इब्राहिम फिरदौस मोहम्मद नूरी गुलिस्तान से अगर मैं हमारे रिसोर्स पर्सन उनके लिए सर्टिफिकेट इनायत अली शर्टोबा रीजनल। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इफ्तिखार सर से कि आप इनके बाद तैयार रहिए मोहम्मद मूसा। मैं जमाल सर से गुजारिश करती हूँ कि आप मोहम्मद हबीब, मुमताज हुसैन के बाद फिरोज खान साहिल। मैं जेडी नेक्स्ट है मोहम्मद बाकर, उनके बाद तैयार रहिए महबूब अली लद्दाख टाइम्स से। इलियास अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहतरम मेडिकल काउंसिलर बराए इतलात और आबिदा आमना लद्दाख पहाड़ी तरक्याती कौंसिल शाकिर इंजीनियर हमसो फैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और आपको शुक्रिया कि आप हर वक्त जब भी इंफॉर्मेशन का कोई भी काम हो और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप पेश रहते हैं और आप हमारे अप्रिसिएशन करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लायक साथ एहतराम जॉइंट डायरेक्टर बराए इतलात जनाब इम्तियाज़ काचो JKS, आप का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर वक्त जर्नलिस्ट की वर्कशॉप्स के लिए जर्नलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए हमेशा आप पेश करते हैं। और मैं फखर के साथ आज ये कह सकता हूँ कि कई सालों से ये वर्कशॉप जो है हम करते आ रहे हैं और इस साल का ये दूसरा वर्कशॉप है जो हम कर पाए, तो इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मीटिंग की वजह से हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब थे उनको ले जाना पड़ा, रज़ाली आबिदी साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश लगा के इस वर्कशॉप को कामयाब करने में आपकी कोशिश की। इस वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन जमाल अफरोज खान साहब, आप इतनी दूर से और इतनी शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी दावत को कबूल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वर्कशॉप के दूसरे रिसोर्स पर्सन मोहम्मद मिखात हाशमी साहब, आपने भी बहुत कोशिश किया और यहाँ पे आए और आपने बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन पेश किया, उसके लिए भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमारे वर्कशॉप के तीसरे रिसोर्स पर्सन इफ्तिखार हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने अपने से वक्त निकाल के यहाँ पे आए। प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हुसैन खालू साहब का और सारे मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। और सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं सईद हाशिम साहब, इब्राहिम फिरदौस साहब, इनायत अली ऑल इंडिया रेडियो से, और दूसरे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, नासिर जैदी साहब, मंसूर साहब, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑल इंडिया रेडियो के दूसरे स्टाफ जो यहाँ पे आए उन सबका शुक्रिया, दूरदर्शन के स्टाफ का शुक्रिया, और आखिर में हमारे डिपार्टमेंट के सबसे पहले कायूसफ का शुक्रिया कि आपने पूरी कोशिश लगा के कई दिन आप इसमें लगे रहे और इस वर्कशॉप को कामयाब करने में आपने कोशिश की। बाकी हमारे PAS ऑपरेटर्स, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरामैन, सारे आप सबका शुक्रिया। मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, सबकी मेहनत से और सबकी कोशिशों से ये वर्कशॉप कामयाब हुआ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है किसी दूसरे ऐसे कामयाब वर्कशॉप में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रोज़ा यहाँ पे वर्कशॉप हुआ जर्नलिस्ट के लिए कारगिल में। इस सर्दी में यहाँ आके यहाँ के जर्नलिस्ट को जो आपने ट्रेनिंग दिया, आप लोगों ने, जो आपकी टीम है यहाँ पे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर?
सबसे पहले तो मैं DIPR का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि मैं यहाँ आकर लोगों से मिल सकूँ और लोकल जर्नलिस्ट के साथ नॉट जस्ट इंटरेक्ट बट थिंक ऑफ अ वे फॉरवर्ड। सबसे पहले तो मुझे सबके इंथुजियाज्म से बहुत स्पिरिट मिला, चाहे ठंडक कितनी भी हो वार्मथ बहुत ज़्यादा थी। अब बात करें प्रोफेशनल टर्म्स में तो यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है, मतलब इन द सेंस दे नो व्हाट द इशू इज, द ओनली थिंग इज दे नीड टू बी गाइडेड। जैसा कि मैंने ये समझा कि सम पीपल फेल्ट दैट कारगिल हैज नॉट गॉट इट्स ड्यू क्रेडिट, तो जर्नलिस्ट ने यहाँ पर यहाँ के मुद्दे उठाकर जैसी जैसी चीज़ों को फॉरवर्ड करना है उस पर वो काम कर रहे हैं। अब हमने जो भी इस वर्कशॉप में बताया है अब काम है उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो मेरा फोकस बस इतना सा था कि लोगों को ईज ऑफ डूइंग थिंग्स में मिल जाए, यानी किसी का कोई अगर कोई काम बहुत लंबा वक्त लगता है तो AI के थ्रू उसकी हेल्प मिल जाए, अपनी सर्च वॉल्यूम को कैसे बढ़ाया जाए, सब्सक्राइबर्स तक कैसे पहुंचा जाए, इसके कुछ कुछ छोटे छोटे सोल्यूशंस हो सकते हैं और सस्टेनेबल जर्नलिज्म की तरफ भी। तो ये मेरा फोकस एरिया रहा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो 2-वे कम्युनिकेशन था कि वो सिर्फ इस वर्कशॉप के लिए नहीं था बल्कि प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ मुझे देखने को मिलेगा एंड आई विल बी रियली हैप्पी इफ द सक्सेस स्टोरी कम्स थ्रू। तो विकास साहब, जो आपने क्योंकि आपने दिल्ली में काम जरूरत है या अपना जो एरिया ऑफ जो फोकस है उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले चीज तो मैं एक साफ कर देना चाहता हूं कि जो मेनलैंड में लोग काम कर रहे हैं उनका फोकस एरिया बहुत सेंट्रिस्ट की तरह, मतलब सेंटर से क्या डिसीजंस हो रहे हैं, और जो आप बोलेंगे जो मोर जैसे अगर कोई हिंदी चैनल है तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जिसको हम बोलते हैं या हिंदी हार्टलैंड बोलते हैं, उनका फोकस एरिया उनकी पॉलिटिक्स की तरफ रहता है या उनकी न्यूज की तरफ रहता है। इवन ब्रेकिंग न्यूज सिनेरियो भी जो है ना वहीं से आता है। अभी महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स मतलब असेंबली इलेक्शन खत्म हुआ है तो उसके बाद सबका फोकस एरिया वहां पर था, बट व्हेन यू कम टू दिस एरिया यू गेट टू अंडरस्टैंड एंड यू गेट टू लर्न दैट यहाँ पर क्या अपने बहुत सेपरेट इश्यूज हैं एंड इट्स नॉट जस्ट द क्लाइमेट, इट हैज टू डू लॉट विथ मतलब कि काउंसलर्स के साथ क्या इश्यूज हैं यहाँ पर, रेगुलेशंस एंड पॉलिटिशियंस के साथ क्या इशू, व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मतलब व्हेन आई से दिल्ली, व्हेन आई मीन सेंटर के अराउंड बहुत। तो यहाँ पर के मुद्दे कौन उठाएगा? आप ही लोग उठाएंगे। तो इस पर तो आप लोग काम कर ही रहे हैं, बस इतना सा है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा सा और सूफियान मतलब और बेहतर हो सकता है। बस पैकेजिंग इज राइट देयर, इट्स जस्ट इट नीड्स टू बी फर्बिश्ड इन अ वे दैट इट लुक्स मच मोर रिफाइंड, बट एवरीथिंग इज बीइंग डन हियर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। थैंक यू। और आपका डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर है और साथ में हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रजा आबिदी साहब को, कि उन्होंने जो है ना पिछले कुछ साल रखा है, पिछले साल भी इसको किया था और दिल्ली से जो है ना आज तक में जो 17-18 साल से काम किया हुआ हमारे अफरोज खान साहब को यहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन लाया है और भी बाहर काफ़ी हुनरमंद लोगों को यहाँ पे क्योंकि जैसे भी जो है ना टेक्नोलॉजी जैसे आगे एडवांस में बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से किसी भी प्रोफेशनल में काम करने वाला है उनको अपडेट रखने के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट था और हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आने वाले दिनों में भी जो है ना इस किस्म के वर्कशॉप जो है ना हमारे डिपार्टमेंट की ओर से आप लोगों को फैसिलिटेट करें। आपने जो ट्रेनिंग के लिए किया इस तरह से बहुत ज़रूरी थी हमारे यहाँ के जो फिल्म वाले और जर्नलिस्ट सब के लिए, आपके ताउन से ये जो मिलता है मौका बहुत बेहतरीन है। और आप ये बताएं कि जर्नलिस्ट जो आमतौर पर है एक जब गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल करते हैं तो गवर्नमेंट की एजेंसी बाद में उसे रद्द कर देती है एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं पाऊंगा इस मौके पे, मैं लेकिन आपको शुक्रिया अदा करूंगा, आप खुद ज़हीर साहब इस महफिल में शामिल हुए इस तकरीब में DIPR करगिल की तरफ से और रजा अली आबिदी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर के सदारत में ये एक जर्नलिस्ट वर्कशॉप मुनक़िद हुआ। इसमें मीक़त हाशमी साहब और जमाल अफरोज़ साहब और इफ्तिखार साहब तीनों रिसोर्स पर्सन वो उन्होंने यहाँ लेक्चर्स दी और आप लोगों के साथ रूबरू हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक इंटरेक्शन बहुत बढ़िया रहा है, पॉजिटिव इंटरेक्शन रहा है, 1-2 वे कम्युनिकेशन रहा है। और ऊपर से दोनों मीक़त हाशमी साहब और जमाल अफरोज़ साहब दिल्ली से इतनी दूर से यहाँ आए और इस महफिल को 4 चांद लगा दिया है इस तकरीब को, और इसके लिए भी शुक्रिया अदा करूँगा। और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के करगिल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस से इनके कारकुन रजा अली आबिदी साहब और AIO अनवर अली सरपा साहब के उनके काम की सराहना करता हूँ। और इस सर्दी में भी उन्होंने जी जान लगा के इस वर्कशॉप को मतलब रियलिटी तक पहुँचाए, तो
अब हमारे एफर्ट्स जितने भी होंगे उसको साइड में रखते हुए हम आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की ज़्यादा दाद देना चाहेंगे और हमेशा देते भी आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के शमूलियत की वजह से ही ये कामयाब हुआ है ये वर्कशॉप। अगर नहीं होता तो हम बस एक फंडिंग सोर्स रह के ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी बन के रह जाते। और ज़रूरी ये था कि आप लोग जी जान लगा के और अपनी मेहनत तो कर रहे हैं बेशक, लेकिन वो काम थोड़ा साइड में रख के आज ये दो रोज़ा जो वर्कशॉप हुआ उसमें इतने क्वांटिटी में आके, इतने नंबर्स में आके इसको चार चांद लगा दिए। हम चाहते हैं कि आपके स्किल अपग्रेडेशन हो, इन्हांसमेंट हो, ओरिएंटेशन बहुत बढ़िया मिले। बाहर के जितने भी रिसोर्स पर्सन आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं और नेशनल लेवल के रेप्यूटेड पर्सनालिटीज़ आते हैं, उनके साथ उनकी एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका उनको मिलता है। लेकिन आप कितना कुछ सीख पा रहे हो हमारे लिए वो ज़रूरी है, और वो आपसे कितना कुछ सीख के जा रहे हैं वो तो उन्हीं को पता है, और वो लोग अच्छे मेमोरीज लेके जाते हैं। लेकिन हर बार जब भी ऐसे वर्कशॉप्स हुए हैं, रिसोर्स पर्सन बाहर से आए हैं, हमेशा तारीफ़ करते हुए गए हैं और इम्प्रेस होके गए हैं, और ये जान के बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं कि आप लोग इस मुश्किल की घड़ी में भी इतनी मुश्किलात का सामना करते हुए भी कितना बढ़िया रिपोर्टिंग करते हो, पब्लिक के ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट तक लाते हो, सोसाइटी में जितने भी इल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी सबके सामने ला के उसके बारे में हल निकालने की कोशिश करते हैं सब मिल के, और बहुत बड़ा पॉजिटिव रिपोर्टिंग वाला माहौल रहता है। आपके वजह से ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो भी ऊपर के सामने आए हैं, लोगों के सामने, लोगों तक पहुँचे हैं इनके बारे में। ज़रूरी ये है कि जितना भी छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में छोटी छोटी बातें और बहुत उम्दा, ज़रूरी, इंटरेस्टिंग बातें आप पब्लिक तक ले जा रहे हो, और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। हम शुक्रिया अदा आप लोगों का करते हैं, हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, और कोशिश इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की यही रही है कि आपके एक्रेडिटेशन हो, आपके वेलफेयर के लिए हम कुछ स्कीम्स निकालें। कोई एक्सीडेंट का कोई इशू हो या कहीं हेल्थ का कोई बेनिफिट की ज़रूरत है, वो भी उस स्कीम के तहत आप तक पहुँचाया जाए। एक तो वो ऊपर से न्यूज़पेपर्स की एम्पावरमेंट भी होती है, साथ साथ फिल्म मेकर्स को भी हम सपोर्ट देते हैं, और वो भी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही होगी कितने भी ऑनहार मीडिया पर्सन्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको रेवेन्यू अर्निंग का एक सोर्स मिले, और इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे जाके अपना हुनर दिखाने के लिए उनको एक मौका मिले। बस बहुत बहुत शुक्रिया जी नासिर साहब। थैंक यू नासिर साहब। रिसोर्स पर्सन बोला कि हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जी। सर, सिर्फ हमारा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या ये प्रोग्राम समर में नहीं हो सकते सर? क्यों नहीं, बिल्कुल। थैंक यू नासिर साहब, आपने ये पॉइंट उभारा भी। बेशक समर्स में हमने आशिना रिजॉर्ट्स में एक कराया भी था एक वर्कशॉप, आपको याद होगा। उस दिन मुझे याद ये भी है कि बहुत सारे आप लोग कहीं और इवेंट्स में बिजी रहे और शायद आ नहीं पाया। आज तो हम देख रहे हैं कि कोई 18 लोग मीडिया फ्रेटर्निटी से आए हुए हैं, उसके लिए आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप नासिर साहब, आपको देख के लोग और इंस्पायर हों और भी मीडिया लाइन में आए, आपसे के साथ इंटर्नशिप करें और रिपोर्टिंग करें। उसकी वजह से क्या होगा कि लोग तादाद बढ़ जाएगी हमारे मीडिया पर्सन्स के लिए, और उससे बड़ी बात हमारी नहीं हो सकती। बेशक हम कोशिश ये करेंगे साल में 2 बार ही नहीं 3-4 बार हों, वर्कशॉप्स हों, ट्रेनिंग्स हो, और ऊपर से जो आप कैमरा माइक वगैरह हैंडल करते हैं उसमें भी आपको ट्रेनिंग देने की हम एक सोच रखते हैं, एक इरादा भी है। ऐसे टेक्निकलिटीज़ में भी रहेंगे। वादा ये है कि एक ट्रेनिंग ऐसे भी मुनाकिद किया जाए लेकर के दोनों में और यूटी लेवल पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का ताउन मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।